वीडियो भी बनानी थी, वीडियो भी। हाँ स्लोली स्लोली, फास्ट फास्ट, स्लोली स्लोली। ठीक है जी। दोबारा बनाइए हमारी। ओए दोनों हाई हाई पे हाई। ये एनर्जी में जाता है। मेरे मॉडल उस साइड मेरे किन्नी टाइम बाहर है। Good morning. Today we have a fun game which called hook and pass the ring. You have to put this hook on this end and pass without touching the wire this end. If you touch the wire, you get a buzzer. Like अभी model an example. Just like we have pass the ring and if you touch the ring, it will buzzer. And maybe you have to, here's the task, you have to pass this end to this end. Tomorrow जो आपका लैब्स लॉस होगा आपके सारे प्रोजेक्ट्स लाइब्रेरी में डिस्प्ले करें to bring other students to come and see and get motivated by you. Manish and my topic is antigen processing pathway. When antigen bind with our cell membrane, then cell membrane get touch with antigen and they enter with the help of endocytosis process. After endocytosis, the phagosome try to engulf it, and after that the lysosome bind with phagosome. They call phagosome, and they try to destroy the antigen which are encounter the body. And after that, with the help of exocytosis, some MHC2 and some MHC2 molecule and protein, they are receptor on this type, and they receive the signal and try to, with the help of exocytosis process, they go out of the body and out of the cell.
Good afternoon. My topic is biofuel production. So we are just written biofuel production using kitchen waste. So it involves three procedures basically. First is the preparation of the medium. It involves the garbage that is taken from the kitchen and kitchen waste को हमने hydrolysis किया है. हाइड्रोलिसिस करके हम उसमें से स्टार्च रिच पोर्शन को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. आफ्टर दैट वी आर डूइंग फर्मेंटेशन विच इज एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग ईस्ट. आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप इज डिस्टिलेशन. हम रिकवर कर रहे हैं बायो इथेनॉल. एंड नाउ मैं इसके बेसिकली मैं एडवांटेजेस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. बायोफ्यूल के एडवांटेजेस हैं हमारे, क्योंकि हम इसको क्या है ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल या डीजल में, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या है वो रिड्यूस हो रही है. सेकेंडली हमारी डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन कंट्रीज पर वो रिड्यूस हो रही है. दैट्स वाई इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक वो भी इम्प्रूव हो रही है. थर्डली हमारी रिन्यूएबिलिटी. एज वी ऑलरेडी नो दैट फॉसिल फ्यूल्स क्या है हमें जनरेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, बट यूजिंग द स्टार्च बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं किचन वेस्ट से हम निकाल रहे हैं, तो उसको हम रिन्यूएबल कभी भी कर सकते हैं. तो वो काफ़ी इजी मेथड है. एंड इसके अलावा हमने जो है स्कैनर बनाया है डिजिटली. हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसको हम स्कैन करके बेसिकली इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम निकाल सकते हैं. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अकॉर्डिंग टू नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 हमें क्या है ये इथेनॉल या फिर डीजल में 20% हमें ये ब्लेंड करना है इथेनॉल या उसको, ताकि हम क्या है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकें और ताकि हम इसकी कॉस्ट को फॉसिल फ्यूल्स की वो रिड्यूस कर सकें. It shows the stages of embryo development, and the stages are from ovulation till implantation. As we know, female reproductive system contain 2 ovaries, 2 fallopian tubes and the uterus. अगर ovulation का मतलब क्या होता है? The formation of the ovum. Ovum जो है through this fallopian tubes goes to the uterus, and if the sperm is present here, तो ovulation जो ovum है वो फर्टिलाइज हो जाता है with the sperm and zygote is formed. Further, zygote will cleave and 2-cell stage. Here you can say 4-cell stage. This is the 8-cell stage, and this is the 16-cell stage. This is the blastocyst 32-cell stage, and here the implantation occurs when the zona pellucidea layer will withdraw and blastocyst will be implanted in the uterine wall. कंसंट्रेशन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसकी वर्किंग ऐसे स्टार्ट होती है कि सबसे पहले हम लोग कोई भी लाइट सोर्स यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वो जाके डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर डायरेक्टली फॉल आउट करेगा, तो वहाँ पे वो स्प्लिट अप हो जाएगा कलर में इनटू 7 बैंड्स ऑफ कलर में. तो उसको मैडम भी आ रही है तो इस साइड देखिए, तो वो 7 बैंड ऑफ कलर में स्प्लिट अप हो जाएगा, जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी. तो उसकी हम लोग क्या करेंगे, सिंगल विद द हेल्प ऑफ एग्जिट स्लिट हम लोग सिंगल वेवलेंथ पास आउट करवाएंगे. यहाँ पे हम लोग एक सॉल्यूशन डालेंगे, कोई भी अननोन सॉल्यूशन, तो उससे हम लोग पास आउट करवाएंगे. तो उसमें कुछ पार्टिकल्स कुछ जो हमारी लाइट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो बाकी की लाइट होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी. जो भी ट्रांसमिट हो जाएगी लाइट, उससे हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर हम लोग नोट आउट कर देंगे. ये इसकी एप्लीकेशन है. ये जैसे किसी डिस्टेंट प्लेनेट का एटमॉस्फेयर है, उसकी कंपोजिशन यूज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ड्रग्स वगैरह की कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. फिर और देन एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है, आर्कियोलॉजी में यूज़ किया जाता है. पुराने आर्टिफैक्ट वगैरह जो होते हैं वो कितने उनकी कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. मैम हर जगह यूज़ होता है. बेसिकली मैं एक स्मार्ट हाउस बनाया जिस काफ़ी कुछ लाएगा. सोलर पैनल हो गया, स्मार्ट लाइट हो गई, सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, तो गैस सेंसर हो गया. मेनली मैं बनाया गैस सेंसर. जिमें कि अपने घर गैस लीक हो जाती है तो आप लाइट ऑन करते हैं जाके, तो ਉੱਥੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ LPG ਗੈਸ ਸੈਂਸਰ ਬਣਾਇਆ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸ डिटेक्ट होगी बजर बज जाएगा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोन कॉल आ जाएगी अपने को. डैट में तो वर्किंग करके दिखा देना है, डालना पड़ता है, फिर वो दिक्कत होती है.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟਰ ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੀ ਤੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਜਿੱਦ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਥਾइल आइसोसाइनेट अगर मिथाइल आइसोसाइनेट का उस टाइम सेंसर होता तब भोपाल गैस का सीन होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए ठीक है उसी तरह मैं स्मार्ट लाइट बनाई है कि लाइट पऊगी तो ऑफ हो जाऊगी नहीं वरना ऑन रहूगी मतलब जे कोई चीज़ होगी रोड पे ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਔਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਫ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ Good afternoon, my name is Sukhveer. My name is Payal. And our topic is Taenia solium life cycle, which is basically tapeworm or animal tapeworm. इन्वायरमेंट में क्या है जो टेनिया सोलियम है उसके प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से क्या होता है इन्फेक्शन अराइज होता है जो कि फर्स्ट स्टेज मानी जाती है जब अनकुक्ड या रॉ मटेरियल जो है वो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं एंड जो कि इनके इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है वहाँ पे क्या होता है इन वर्म्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग जाती है क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं एंड वहाँ पे क्या होता है उनका शक्कर जो होता है स्कोलेक्स वो रीजन अटैच हो जाता है वहाँ से क्या ह्यूमन से न्यूट्रिशंस absorb करते हैं is the basic and structural unit of our life and cell constitutes of various organisms. Here present nucleus. In nucleus there is a genetic material which is DNA. Okay, so the size of the diameter of this nucleus is 2 micrometer and the size of DNA which is packed into it is around 2 meter. So how it is possible to pack this much long DNA into 2 micrometer diameter nucleus? Okay, so basically here we see there are 3 components of DNA helix which are sugar and phosphate chain and the nitrogenous bases. These nitrogenous bases are adenine, thymine, cytosine and guanine. These are covalently bound and result in the formation of double helical structure of the DNA molecule. Now this double helical structure of DNA get coils around the histone proteins. Histone proteins are positively charged due to the presence of amino acids that are lysine and arginine. And the DNA is negatively charged due to presence of this phosphate group. Now these histone proteins further forms an octamer of protein that is nucleosome. And this is called as beads on string structure. Now this nucleosome further coils and forms a 30 nanometer solenoid. And now this solenoid gets further more coiled and more condensed in this chromosome. Now this is how this long of DNA is packed into this 2 micrometer of nucleus. यहाँ पे लॉगिन आएगा माई कॉलेज मैंने आता मैम वैसे तो पहुँचाया था लास्ट वाले बैठे थे मैम अभी से थोड़ा सा टिल्ट करो इस साइड को अभी थोड़ा सा ऐसे हाँ डालने दो तो उस टाइम पे
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें विनेगर या बेकिंग सोडा को डाला है और उसके बाद हमने ऑयल को डाला है। ऑयल को डालने के बाद हमने विनेगर को ऐड किया है एंड विनेगर लाइटर होने के कारण नीचे चला गया, हैवियर होने के कारण नीचे चला गया और जो ऑयल है वो ऊपर आ गया। उसके बाद विनेगर और बेकिंग सोडा में जो रिएक्शन शुरू हुआ उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स ऊपर को आने लग गए और बबल्स ऊपर आने के कारण ये प्रोसेस चल रहा है। और जो कलर है वो विजिबल है ड्यू टू एडिंग द कलर। कोई और भी है? करो नेक्स्ट। तो मैम हमने लैब में बायोप्लास्टिक सिंथेसाइज किया है विद द हेल्प ऑफ स्टार्च ग्लेशियल एसिटिक एसिड से हमने विनेगर बनाया। विनेगर में डिस्टिल्ड वाटर एंड ग्लाइसोल डाल के जब मिक्सचर को हीट किया गया लगभग 10 से 15 मिनट तक, तो एक स्लाइमी सब्सटेंस हमारे पास आया जिसको फ्लैट सरफेस पे हमने जब रखा तो कुछ ऐसा सा उसका स्ट्रक्चर आ गया। अभी ये इन प्रोसेस है, ये जब ड्राई हो जाएगा तो ये एज अ प्लास्टिक शीट एक्ट करेगा एंड ये बायोडिग्रेडेबल होगा जो कि एक इको फ्रेंडली प्लास्टिक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, अगर हम टैप वाटर बलून पे डालें तो कुछ नहीं होता है, वेयरएज अगर हम हाइड्रोकार्बन जैसे कि पेट्रोलियम ईथर बैलून पे डालें तो ये बर्स्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हाइड्रोकार्बन आपस में डिसॉल्व होते हैं। दोबारा कर दो। अगर हम किसी भी डिस्टिल वाटर को अगर हम किसी बैलून पे अगर डालेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इफ वी पुट एनी हाइड्रोकार्बन सो इट विल burst because hydrocarbon dissolved. बनेंगे